Hello and welcome to the e-content developing program for undergraduate classes of commerce under the aegis of the Directorate of Higher Education Haryana. I am here with you all with my fourth video on the ratio analysis. In this video, we will cover about the profitability ratios. Let us start with the meaning of profitability. The meaning of profitability means the profit earning capacity of the business from its various activities. कि हमारी जो बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, जो हम कार्य कर रहे हैं बिजनेस की, वो कितने हैं. द प्रॉफिट अर्निंग कैन बी जज्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, कि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उससे हमें कितना मार्जिन हो रहा है. Profitability ratio is the measure overall efficiency, यानी कि पूर्ण क्षमता एवं परफॉर्मेंस को मेजर करती है. The various types of profitability ratios are: number 1, gross profit ratio, operating ratio, operating profit ratio, net profit ratio, return on investment ratio या return on shareholders ratio, return on capital employed ratio, earning per share, dividend payout ratio, dividend yield ratio, price earning ratio, net profit to net worth ratio. The first four ratios, that is gross profit ratio, operating ratio, operating profit ratio and net profit ratio, they are based on the sales, and other ratios are based on the profitability. So let us start with the gross profit ratio. The first ratio, gross profit ratio क्या है? ये establish कर रही है relationship between the gross profit and the net sales. और कैसे कैलकुलेट किया जाता है? gross profit divided with net sales multiply with 100. और gross profit कैसे निकाला जाता है? sales minus cost of goods sold. net sales कैसे निकाले जाएंगे? gross sales minus sales return. अगर हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हायर है, इसका मतलब जो हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी है. इट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंसेस ऑफ द फर्म्स बिजनेस. हायर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्यों होती है? ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. नंबर 1, अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है, if there is increase in selling price without corresponding proportion increase in the cost में increase नहीं किया परंतु selling price increase हो गया. and lastly is the increase in the sales mix. और जो low profit gross profit ratio है, ये क्यों होती है? there is increase in the cost of goods sold, there is decrease in the selling price, there is decrease in the sales volume, competition बहुत ज्यादा है, and there is the decrease in the sale mix. Coming to the advantages of this ratio, ये रेशियो क्या कर रही है? It helps to measure the relationship between the gross profit and net sales, जो बेसिक फॉर्मूला है इसका. It reflects the efficiency with which the firm produces its product. efficiency को दर्शाता है कि किस efficiency से हम products को produce कर रहे हैं. This ratio tells the management that low gross profit ratio may indicate the unfavorable purchasing and markup policy. अगर ये low है तो इसका मतलब जो हमारी purchasing या markup policies हैं वो favorable नहीं है. If a gross profit ratio is low, it also indicates the inability of the management to increase the sale. Sale increase नहीं हो पा रही है हमारी. ये inefficiency को भी दर्शाता है management की. Next ratio is the operating ratio. Operating ratio क्या है? It is calculated to measure the relationship between the total operating expenses and the sales. Total operating expenses and the sales के relationship को जो ratio मापती है उसको operating ratio कहा जाता है.
The total operating expenses is the sum total of cost of goods sold, office and administrative expenses, and selling and distribution expenses. In other words, this ratio indicates the firm's ability to cover the total operating expenses. ये रेशियो हमें क्या बता रही है कि फर्म की एबिलिटी कितनी है कि वो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर कर सके. द फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड विद नेट सेल्स मल्टीप्लाई विद 100. और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाली गई है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. और सेल्स हमने पहले निकालनी सीखी थी. नेट सेल इज इक्वल टू व्हाट? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. नेक्स्ट रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या बता रही है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म एंड इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी टू कवर द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने क्या बताया कि हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है और क्या इस हमारी एबिलिटी है कि हम जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अराइज हुए हैं उनको हम कवर कर सकें. कैसे कैलकुलेट की जाएगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड विद नेट सेल्स मल्टीप्लाई विद 100. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला गया है? सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट या नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. और other formula for calculating operating profit, that is gross profit minus operating expenses. और तीसरा formula operating profit plus non-operating expenses minus non-operating incomes. These all formulas will be helpful in calculating the operating profit. So operating profit ratio क्या बताया हमें? हमें बता रहा है operating profit और net sales के बीच में relationship. नेक्स्ट रेशियो इज द नेट प्रॉफिट रेशियो. नेट प्रॉफिट रेशियो को क्या कहा जाता है? सेल्स मार्जिन रेशियो भी कहा जाता है, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो भी कहा जाता है और नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो भी कहा जाता है. ये रेशियो रिवील करती है कि जो फर्म की ओवरऑल एफिशिएंसी है इन ऑपरेटिंग द बिजनेस. और नेट प्रॉफिट रेशियो इज यूज्ड टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट आइदर बिफोर और आफ्टर, कुछ भी कर सकते हैं, taxes and the sales. This ratio can be calculated by the following formula. Net profit कैसे निकलेगा? Net profit after taxes divided with net sales multiply with 100. और net profit क्या क्या include कर रहा है? Non operating incomes and profits. Non operating incomes like dividend received, income, interest on investment, profit on the sales of fixed assets, commission received, discount received, etc. Profit or sale margin indicates the margin available after deduction of the cost of production and other operating expenses. Profit क्या है? जो मार्जिन बचेगा हमारे पास कब? जब हम उस मार्जिन में से क्या डिडक्ट कर देंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस कर देंगे और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे एंड इनकम टैक्स माइनस कर देंगे. इसमें से? सेल्स रेवेन्यू में से. Higher net profit ratio indicates the standard performance of the business concern. It means जो performance है business की वो standardized है, अच्छी है. Next ratio is the return on shareholders fund ratio, most important ratio. This ratio measure the return on owners or shareholders investment. कि shareholder ने या owner ने जो investment की है उस पे उसको रिटर्न कितना मिल रहा है. ये रेशियो एस्टैब्लिश कर रही है रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. आई रिपीट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड ओनर्स इन्वेस्टमेंट. तो ये रेशियो कौन सा रिलेशनशिप बता रही है हमें? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड विद द शेयर होल्डर फंड्स या ओनर्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई विद 100. और शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला गया है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, सरप्लसेस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस. और नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. तो ये रेशियो क्या बताया?
इस रेशो ने हमें ये बताया कि जो नेट प्रॉफिट बचेगा हमारा, दैट इज आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसका और शेयर होल्डर्स फंड का क्या रिलेशनशिप है। एडवांटेजेस ऑफ दिस रेशो इज, दिस रेशो हाईलाइट्स द सक्सेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जितनी ज्यादा होगी है बिजनेस के ओनर्स को उतना फायदा। इट हेल्प्स टू मेजर एन इनकम ऑन द शेयर होल्डर्स और प्रोप्राइटर्स इन्वेस्टमेंट। क्या मेजर करता है कि शेयर होल्डर्स या प्रोप्राइटर की ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट से इनको कितनी इनकम हो रही है। दिस रेशियो हेल्प्स द मैनेजमेंट फॉर मेकिंग द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। इट फैसिलिटेट्स इन डिटरमाइनिंग एफिशिएंटली हैंडलिंग ऑफ ओनर्स इन्वेस्टमेंट। जो ओनर ने पैसा लगाया क्या वो एफिशिएंट तरीके से हैंडल हो रहा है या नहीं हो रहा। मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट रेशियो, दैट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये रेशियो क्या बता रही है हमें, इट मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें भी प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड। द प्रॉफिट मीन्स profit or the net profit. The capital employed refer to the investment made in the total investment made in the business. वहां क्या था, केवल शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट, यहाँ क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट। द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग वेज। डिफरेंट वेज हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के। एक होता है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, एक होता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर होता है प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहला क्या था आपका, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, आपका फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, जितने भी टोटल एसेट्स है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है आपका, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी कि ग्रॉस टू नेट। नेट करने के लिए एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया। नेक्स्ट इज द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या किया, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड विद 2, और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड जो यहां निकाला है डिवाइड प्लस हाफ ऑफ प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस। एंड लास्टली इज द प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकाला, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। और फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स में जो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सभी है। Now the formula of return on capital employed is net profits before interest and taxes. Shareholders fund में क्या था, after interest and taxes। लेकिन जब आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, वहां पर जो नेट प्रॉफिट लिया जाएगा दैट इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड विद द ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड फॉर्मूला, net profit before interest and taxes divided with the average capital employed or the net capital employed, as the case may be, whatever information is given to us। लेकिन मेन बात ध्यान क्या रखनी है कि यहां पर जब भी आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, जो नेट प्रॉफिट लिया जाएगा वो बिफोर लिया जाएगा। मेक श्योर दैट। नेक्स्ट रेशियो इज द अर्निंग पर शेयर रेशियो। अर्निंग पर शेयर रेशियो क्या मेजर कर रही है, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न फ्रॉम द, ध्यान रखना, ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इन द मार्केट्स। इस रेशियो ने क्या बताया हमें कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज ये क्या बता रही है कि हमारे इक्विटी शेयर का प्राइस क्या है मार्केट के अंदर। कैसे कैलकुलेट की गई है, जब भी ओनर का नाम आता है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट मींस आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, एंड यहां पर एक नई चीज और है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। इट मींस व्हाट, कि जो नेट प्रॉफिट लेना है वो कौन सा लेना है अर्निंग पर शेयर रेशियो में, नेट प्रॉफिट सब कुछ माइनस करने के बाद, दैट इज टैक्सेस भी, इंटरेस्ट भी और प्रेफरेंस डिविडेंड भी, divided with what, divided with the number of equity shares। एडवांटेजेस क्या है इस रेशियो की, दिस रेशियो हेल्प्स टू मेजर द प्राइस ऑफ अ स्टॉक इन द मार्केट प्लेस। पहला काम, इस रेशियो के जरिए हमने क्या पता लगाया कि हमारे स्टॉक का
प्राइस कितना है मार्केट में। दूसरा, इट हाईलाइट्स द कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न मतलब ओनर टू पे द डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स। थर्ड इज दिस रेशियो इज अ यार्डस्टिक टू मेजर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द, जितना प्रॉफिट बचा आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, ये क्या दर्शाएगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस को। जितना ज्यादा बचा इट मींस द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इज साउंड। नेक्स्ट रेशियो इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये रेशियो क्या एस्टैब्लिश कर रही है, दिस रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स and the profit available after meeting the taxes and the preference dividend. This ratio indicates the dividend policy adopted by the top management about the utilization of divisible profit to pay the dividend or retain or the both. तो इस रेशियो ने हमें क्या बताया कि रिलेशनशिप क्या है इक्विटी डिविडेंड का और नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट कब, आफ्टर दी टैक्सेस एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। और ये रेशियो क्या बता रही है, ये रेशियो मदद करेगी डिविडेंड पॉलिसी को बनाने में। किस चीज में, कि हमें डिविडेंड पॉलिसी के लिए जो यूटिलाइजेशन करना है डिविजिबल प्रॉफिट का, वो कब किया जाए, डिविडेंड पे किया जाए या रखा जाए या दोनों काम कर दिए जाए। कैसे कैलकुलेट किया, इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड विद द नेट प्रॉफिट after taxes and the preference dividend multiply by 100. Second formula is dividend per equity share divided by the earning per equity share. दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड विद नेट प्रॉफिट। ध्यान रखना आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर आफ्टर टैक्स है तो वो आफ्टर इंटरेस्ट भी है। और सेकेंड फॉर्मूला इज डिविडेंड per equity share divided by the earning per equity shares. Next ratio is the dividend yield ratio. Dividend yield ratio indicates the relationship between dividend per share and the market value of per share. किस किस के बीच में रिलेशनशिप, डिविडेंड पर शेयर के बीच में और मार्केट वैल्यू पर शेयर के बीच में। This ratio is the major factors that determine the dividend income from the investor's point of view. इसको यूज कौन कर रहा है, इन्वेस्टर्स, यानी कि डिविडेंड इनकम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉर्मूला इज डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड विद द मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई विद द हंड्रेड्स। नेक्स्ट रेशियो इज द प्राइस अर्निंग रेशियो। This ratio highlights the earning per share reflected by the market share. कहने का मतलब क्या है, इसने क्या हाईलाइट किया कि अर्निंग पर शेयर, तो कहां से पता लगा, मार्केट शेयर से। प्राइस अर्निंग रेशियो establishes the relationship between the market price of equity share and the earning per share. This ratio helps us to find out whether the equity share of the company are undervalued or not. This ratio is also useful in the financial forecasting. फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में भी मदद करती है। कैसे कैलकुलेट की गई है ये, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड विद द अर्निंग पर शेयर। सो द फॉर्मूला प्राइस अर्निंग रेशियो इज मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर। ध्यान रखना, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड विद द अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट रेशियो इज द नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो। ये रेशियो क्या है, इट मेजर द प्रॉफिट रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट, इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट एंड द शेयर होल्डर्स नेट वर्थ। नेट प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर टैक्सेस वाला। इट इज रिवॉर्ड फॉर द अजम्पशन ऑफ द ओनरशिप रिस्क। फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस divided with the shareholders net worth multiply with 100. shareholder net worth कैसे निकाला गया है, कंपनीज नेट एसेट माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड प्लस प्रॉफिट रिटेन्ड इन द बिजनेस।
केवल ओनरशिप यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नहीं आएंगी इसके अंदर। एडवांटेजेस क्या है? इट डिटरमाइंस द इंसेंटिव्स टू द ओनर्स। सेकंड, दिस रेशियो हेल्प्स टू मेजर द प्रॉफिट एज वेल एज द नेटवर्थ। दोनों चीजें, प्रॉफिट भी बता रहा है, नेटवर्थ भी बता रहा है। इट इंडिकेट्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म। ओवरऑल परफॉर्मेंस को और क्षमता को मापने के काम आता है। मेजर द एफिशिएंसी विद विच द रिसोर्सेज ऑफ द फर्म हैव बीन एम्प्लॉयड। किस क्षमता से हम पूरे जो रिसोर्सेज हैं उनको एम्प्लॉयड कर रहे हैं, उनका हम यूज कर रहे हैं। Let us understand the concept of probability ratio with the help of an example. In this example, we are given with the trading profit and loss account of a company for the year ended 31st December 2003. In this question, what we are required to do? We are required to calculate the gross profit ratio, operating ratio, and net profit ratio. I repeat, in this question, we are required to calculate the gross profit ratio, operating ratio, and net profit ratio. So let us calculate first of all the gross profit ratio. We know that the gross profit ratio is equal to the gross profit divided with the net sales. In this question, we are given with the gross profit value, that is rupees 1,15,000. So 1,15,000. We are also given with the value of sales, that is 4 lakh. 1,15,000 divided with the 4 lakh, the gross profit ratio is 28.75%. Now the second ratio was the operating ratio. The formula of operating ratio is the total operating cost divided with the net sales multiplied with 100. So how do we calculate the total operating cost? It is equal to cost of goods sold plus operating expenses. And how do we calculate the cost of goods sold? Opening stock plus purchases minus closing stock. In this question, we are given with the opening stock of rupees 60,000, purchases with 2,75,000, and closing stock was of 75,000. So the value of cost of goods sold are 2,60,000. Now coming to the operating expenses. Operating expenses are office expenses plus administrative expenses plus selling and distribution expenses. In the question, we are given 5,000 as the office expenses, 10,000 as the administrative expenses, and 45,000 as the selling and distribution expenses. So the total of operating expenses are 60,000. The value of total operating cost is equal to cost of goods sold plus operating expenses. That the cost of goods sold है हमारा 2,60,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हमारे 60,000 के, दोनों को प्लस किया 3,20,000. The formula was total operating cost divided with net sales. हमारा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आया है 3,20,000 और सेल्स हमें गिवन है 4 lakh. So the operating ratio is 80%. Now coming with the other ratio, that is operating profit ratio and net profit ratio. The formula for operating profit ratio is net operating profit divided with the net sales. Net operating profit कैसे निकालेंगे हम? नेट सेल्स माइनस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट. हमारी नेट सेल्स है 4 लाख और पिछले पार्ट में हमने टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाला है, दैट वाज 3,20,000. सो आवर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर 80,000. आई रिपीट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नेट सेल्स माइनस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट. नेट सेल्स हमारी क्वेश्चन के अंदर 4 लाख गिवन है और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें गिवन है, दैट इज रुपीज 3,20,000. So our total net operating profits are rupees 80,000. The formula was
net operating profit divided with net sales, 80,000 divided by 4 lakh, so net profit ratio is 20%. Moving with the other, that is the net profit ratio. The formula of net profit ratio is net profit after tax divided with the net sales. क्वेश्चन के अंदर हमें नेट प्रॉफिट कितना दिया है, दैट इज रुपीज 50,000 और नेट सेल्स है हमारी 4 लाख. लेट अस सी, हियर वाज अ क्वेश्चन. net profit is given to us rupees 50,000 and sales are rupees 4 lakh. See, net profit divided with the net sales, 50,000 divided with 4 lakh, that is equal to 12.5%. Now let us understand all the profitability ratios with the help of certain examples. The first question is, we have to calculate the investment ratio या capital employed ratio from the following information. हमारे पास क्या गिवन है, 1000 इक्विटी शेयर्स गिवन है, 10 रुपीज ईच, 10,000. 2000 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 20,000. रिजर्व 5000. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10,000. इंटरेस्ट 2000. टैक्सेस हैं हमारे पास 3000. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो या कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला था आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड विद शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई विद 100. शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट्स क्या थी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या गिवन है, हमें इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 गिवन है और रिजर्व्स 5,000 है. किसी भी तरह के एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं है, तो हमारा जो शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट आया है वो 35,000. दूसरा काम हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000 विच इज बिफोर. अब हमने इसमें से क्या किया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया और टैक्सेस माइनस कर दिए, इन दोनों को टोटल किया, दैट इज 5,000. तो 10,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 5,000. So the return on investment ratio 5,000 divided with 35,000 which is equal to 14.28%. Coming to the next question. In the next question, what we have to calculate? We have to calculate the earning पर शेयर. हमें क्या क्या गिवन है, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, टैक्सेशन का रेट हमें 50% गिवन है ऑन नेट प्रॉफिट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपए ईच 2 लाख के, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए ईच 2 लाख रुपए के. इक्विटी शेयर इज गिवन टू अस. फॉर्मूला क्या है अर्निंग पर इक्विटी शेयर का, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड विद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. अब हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें वी आर गिवन विद दी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ये दैट इज 2 लाख और टैक्सेशन रेट क्या है 50%. तो आफ्टर टैक्स कितना है नेट प्रॉफिट हमारा, 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख रुपए हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है. उसमें से हमने अभी प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना है. प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, that is what we are given with the 10% preference share capital of rupees 10 each 2 लाख. तो इसका मतलब 10% हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है. 2 लाख के टोटल प्रेफरेंस शेयर, इसका 10% 20,000. 1 लाख रुपए हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था, इसमें से 20,000 रुपए हमने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया. जब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया हमने तो 1 लाख माइनस 20,000, तो 80,000 रुपए क्या है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड. दूसरी चीज क्या चाहिए हमें फॉर्मूला के अंदर, दैट इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. हमें इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए ईच 2 लाख, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकलेंगे हमारे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10. तो हमारे जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हुए वो है 20,000. तो अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये आता है आंसर 4 रुपीज पर शेयर का. Let us take another question. The another question is with regard to the calculation of the dividend payout ratio. क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट गिवन है 60,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेस 15,000, प्रेफरेंस डिविडेंड 15,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 6,000 और डिविडेंड पर इक्विटी शेयर हमें गिवन है 0.30. डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड विद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, या दूसरा फॉर्मूला था हमारा डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड विद द अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर. हम पहले फॉर्मूले के साथ से करते हैं. व्हाट वी आर गिवन टू अस? वी आर गिवन द डिविडेंड इक्विटी डिवाइडेड विद द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड. हमें सबसे पहले क्या निकालना है? इक्विटी डिविडेंड निकालना है. इक्विटी डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई विद डिविडेंड पर इक्विटी शेयर्स. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे 6,000 है और डिविडेंड पर इक्विटी शेयर है 0.30, तो 6,000 मल्टीप्लाई विद 0.30 दैट इज इक्वल टू 1,800. अब दूसरी चीज, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड. व्हाट वाज द फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड. हमें नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 60,000 दिया हुआ है. टैक्सेशन कितना है? 15,000. प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 15,000. तो ये दोनों माइनस किया, हमारे पास क्या आया? दैट इज 60,000 माइनस 30,000 दैट इज इक्वल टू 30,000. नाउ सेकेंड ऑल्टरनेटिव, डिविडेंड पे आउट रेशियो डिविडेंड पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड विद दी अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई विद 100. डिविडेंड पर इक्विटी शेयर हमारा है 0.30 और अर्निंग पर इक्विटी शेयर कैसे निकालते थे? जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड हमने निकाला 30,000. 30,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर हमारे 6,000, तो 5 रुपया पर शेयर आया हमारा अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर. तो 0.30 डिवाइडेड विद 5 मल्टीप्लाई विद 100 दैट इज इक्वल टू 6%. तो हमारा जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है दैट इज 6%. लेट अस टेक द अनदर एग्जांपल. In this question, what do we have to calculate? We have to calculate the two things. पहली चीज क्या है? We have to calculate the earning per share. We have to calculate the dividend yield ratio. We have to calculate the price earning ratio. तीन चीजें हमने इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है. हमें गिवन क्या क्या है? We are given with the net profit 6 lakh. We are given with the market price per equity share 60, number of equity shares 40,000, provision for taxation 1,60,000, preference dividend 5,000, depreciation 70,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000. अर्निंग पर शेयर सबसे पहले क्या फॉर्मूला था? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड. ये हमने पहले भी निकाला हुआ है. हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें? We are given the net profit of rupees 6 lakh. And what is the taxes? 1,60,000. And what is preference dividend? 50,000. So 6 lakh minus 1,60,000 plus 50,000. 6 lakh minus 2 lakh 10,000 that is equal to 3,90,000 divided with the number of equity shares. Number of equity share हमारे 40,000 हैं. तो 3,90,000 divided with 40,000 तो अर्निंग पर शेयर आता है रुपीज 9.75. नेक्स्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट द डिविडेंड यील्ड रेशियो. डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या था? अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड विद मार्केट वैल्यू पर शेयर. अर्निंग पर शेयर हमने ये निकाला 9.75.
एंड व्हाट इज द मार्केट वैल्यू पर शेयर, देखिए मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज 60 विच इज गिवन टू अस, तो 9.75 divided with 60 multiplied with 100, that is 16.25. Lastly, we have to calculate the earning per share, price earning ratio. Market price per equity share divided by earning per share, इसको reverse कर दिया, 60 divided with 9.75, so that is equal to 6.15. So this is all from the profitability ratios. Thank you. Hello and welcome again. Now let us see some of the important questions from the solvency ratio and the turnover ratios. The short answer type questions may be that you have to write a short notes on the liquidity ratios, profitability ratios, turnover ratio, solvency ratio and the overall profitability ratios. Another question of short answer type nature is discuss the usefulness of the following ratios, की उपयोगिताएं क्या क्या हैं, इन्वेंट्री रेशियो की, ऑपरेटिंग रेशियो की, प्राइस अर्निंग रेशियो की, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की और डेटर्स टर्नओवर रेशियो की. The practical question from this category me includes कि you are given with the following information of the Pawar Limited for the year ended 31 December 2018. You are given with the share capital, bank overdraft, working capital, current ratio, quick ratio, gross profit ratio, stock turnover ratio. You are given with the sales also, total debtors, opening creditors, closing creditors, and lastly you are given that the closing stock is the rupees 20,000 higher than the opening stock. What you are required to calculate? You are required to calculate from the above information the current assets and the current liabilities. You are required to calculate cost of goods sold, average stock और purchase. आपको creditors turnover ratio, creditors payment period, डेटर्स टर्नओवर रेशियोज, डेटर कलेक्शन पीरियड और लास्टली आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज निकालनी है. अनदर क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड. आपको क्या दिया हुआ है? आपको कुछ रेशियोज दी हुई हैं और इन रेशियोज और इंफॉर्मेशन की सहायता से आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है एक्स लिमिटेड कंपनी की. क्या क्या गिवन है आपके पास? यू आर गिवन विद द स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, यू आर गिवन विद द कैपिटल टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, यू आर गिवन विद द ग्रॉस प्रॉफिट 20%, डेट कलेक्शन पीरियड 2 months, creditors payment period 73 days. The gross profit was rupees 60,000 and the closing stock was 5,000 in excess of opening stock. तो इन सारी इंफॉर्मेशन की सहायता से आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है एक्स लिमिटेड कंपनी की. Another question that is you are required to calculate the debt equity ratio, total asset to debt ratio, proprietary ratio, debt to capital employed ratio. और बैलेंस शीट आपको दी हुई है 31 मार्च 2015 की. इन इंफॉर्मेशन की सहायता से दैट इज दी लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,50,000 एंड कैपिटल करंट लायबिलिटी 50,000, फिक्स एसेट्स 4 लाख के हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, करंट एसेट्स 2 लाख के हैं. इन सारी इंफॉर्मेशन की सहायता से आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालनी है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालनी है. तो बेसिकली इस बैलेंस शीट की सहायता से आपको सॉल्वेंसी रेशियोज का पता लगाना है.